سماج میں عزت سب کو چاہیے، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، مزدور ہو، امیر ہو، عالم ہو، جاہل ہو، کالج کا اسٹوڈنٹ ہو، مدرسے کا طالب علم ہو، مسجد کا امام ہو، مقتدی ہو، خانقاہ کا پیر ہو یا مرید ہو، جہاں عزت نہیں ملتی وہاں انسان نظر نہیں آتا۔ مگر عزت ملے گی کیسے؟ سماج میں وقار ملے گا کیسے؟ آخر عزت پانے کی راہ کیا ہے؟ سماج میں عزت تو سب کو چاہیے، تو قرآن کہتا ہے کہ عزت کی صرف ایک راہ ہے، اوت العلم درجات۔ جو علم حاصل کرے گا، شکشا گرہن کرے گا، تعلیم یافتہ بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جو بھی تعلیم یافتہ ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، ایجوکیٹڈ ہوگا، سماج میں ہر انسان اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق، انجینئر اپنے علم کے مطابق، پروفیسر اپنے علم کے مطابق، سائنٹسٹ اپنے علم کے مطابق، عالم دین اپنے علم کے مطابق، حافظ قرآن اپنے علم کے مطابق۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میٹرک پاس بچے کو بی اے کے برابر عزت مل جائے، بی اے پاس کرنے والے کو ایم اے کے برابر عزت مل جائے۔ ہر انسان اپنے علم کے مطابق عزت پاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تم کیا سمجھتے ہو پڑھے لکھے اور جاہل یہ دونوں برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے علم والوں کے رتبے کو بڑھا دیا ہے۔ ڈاکٹر جوہر میاں شفیع آبادی کا دو شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اور خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج تعجب کی بات ہے، جس سماج میں ہم جیوت اور زندہ ہیں، سب سے پہلے دنیا میں جس نے علم کا نعرہ بلند کیا اور کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، آج وہی قوم تعلیم میں پسماندہ ہے، آج وہی قوم تعلیم میں پیچھے ہے۔ آج زمانہ ہم پہ حملہ آور ہے، لیکن ہمیں جہاں ہونا ہے شاید ہم وہاں پہ نظر نہیں آتے، ہماری تعداد وہاں پہ نہیں ہوتی، ہماری پہنچ وہاں پہ نہیں ہوتی۔ قابل مبارکباد ہے آپ حضرات کہ دن بھر ڈیوٹی کرنے کے باوجود بھی آپ اس بزم محبت میں شریک ہو گئے۔ کوئی اپنی بستی چھوڑ کر، کوئی اپنا گاؤں چھوڑ کر، کوئی اپنا پردیش چھوڑ کر، کوئی اپنا خاندان چھوڑ کر، کوئی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، ہر انسان روزی روٹی کی فکر میں یہاں تک پہنچا ہے۔ ہم لوگوں کے بھی آنے کا مقصد ہے قوم کی اصلاح ہو، زمانے میں انقلاب آئے۔ لیکن سلطان رضا ایک بات کہنا چاہے گا، میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا، آج زمانہ جہاں سے ہم پر حملہ آور ہے شاید ہم وہاں پہنچنے کی کوشش میں نہیں ہیں۔ یاد رکھیے گا وہاں پہنچنے کی صرف ایک راہ ہے، اور اس راہ کا نام ہے علم۔ آج ضرورت ہے الحمدللہ ہماری قوم کے پاس تعلیم ہو، یہ قوم ہر حال میں تعلیم یافتہ بنے، پیچھے نہ رہے۔ آپ صحابہ کی زندگی کو یاد کریں، مسجد نبوی شریف میں جائیں گے تو صفہ جیسا چبوترا پہلے ملے گا، سرکار کا ممبر و محراب بعد میں ملے گا۔ آپ جب صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، جنہوں نے بھوکے پیاسے رہ کر علم دین مصطفیٰ کو ہم تک پہنچانے کا کام کیا، وہ زمانہ بڑا ترقی یافتہ نہیں تھا۔ قلم لکھنے کے لیے صحابہ کے پاس قلم نہیں تھا، کاپی کا وجود نہیں تھا، پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں تھی، پھر بھی صحابہ بھوکے رہ کر کھجور کی چھالوں پر لکھ کر، درخت کی ٹہنیوں پہ لکھ کر، پتھر
पत्थरों पे लिखकर सहाबा ने पूरा दीन हम तक पहुंचाया है, पूरा कुरान हम तक पहुंचाया है, हदीसें हम तक पहुंचाई है। लेकिन आप जरा सा सोचे, आज हमारे पास दुनियावी तालीम के लिए भी बेहतरीन कॉलेज मौजूद है, अच्छी यूनिवर्सिटियां मौजूद है, मदारिस में हमारे पास दीनी तालीम के लिए अच्छी दरसगाहें मौजूद है, मगर क्या वजह है? हम गौसे आजम के गुलाम हैं मगर तालीम में हम पीछे हैं। हम आला हजरत इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं। अल्लाह ने जिन्हें इस जमाने में 100 से जायद उलूम अता किए, हम उनके मानने वाले हैं, मगर आज हम तालीम के मैदान में पीछे हैं। हम उस्ताजुश शरिया के मानने वाले हैं, जिन्हें जब कहा गया, किसी ने इंग्लिश में सवाल किया तो इंग्लिश में जवाब दे दिया, अरबी में सवाल आया अरबी में जवाब दे दिया, हिंदी में किसी ने सवाल किया हिंदी में जवाब दे दिया, उर्दू में किसी ने सवाल किया उर्दू में जवाब दे दिया। सवाल ये उठता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम के लोगों, याद रखना, आज आपको ये देखना होगा हमें कहां पे किस तालीम की जरूरत है। इस्लाम में तालीम हासिल करना फर्ज है, मगर जो तालीम फर्ज है इससे मुराद वो तालीम है जिस तालीम का मोहताज एक डॉक्टर भी है, एक इंजीनियर भी है, एक प्रोफेसर भी है, एक राइटर भी है, एक साइंटिस्ट भी है। आप कहेंगे मौलाना उस तालीम से मुराद दीने मुस्तफा की तालीम है। याद रखिएगा, एक इंसान डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, उसके पास मैट्रिक की डिग्रियां हो, इंटर की डिग्रियां हो, बीए की डिग्रियां हो, मगर इस बात की गारंटी नहीं है कि जिसके पास डिग्रियां हैं वो समाज का एक अच्छा इंसान भी हो, वो समाज का एक अच्छा व्यक्ति भी हो, उसे जिंदगी जीने का शऊर भी मालूम हो, उसे जिंदगी जीने का तरीका भी मालूम हो। तभी तो आपने सुना होगा, एक डॉक्टर है मगर शराब पीने में मस्त है, एक इंजीनियर है मगर रिश्वत लेने में मस्त है, एक जज है मगर साहब सारे कानून को बलाए ताक रखकर फैसला सुना देता है। लोग रिश्वत लेने में मस्त है। एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा है मगर जहेज के मामले में साहब अपने आप को रोक नहीं पाता है, जानता है जहेज मांगना हराम मगर फिर भी मांग रहा है। समाज में ये बुराइयां जो आम है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे पास डिग्रियां बहुत है, लेकिन उन डिग्रियों के बावजूद लाखों बच्चे हर साल मैट्रिक पास करते हैं मगर गांव में वो इनकलाब नहीं आता। करोड़ों बच्चे इंटर पास करते हैं मगर बस्ती में वो इनकलाब नहीं आता। लाखों बच्चे बीए पास करते हैं मगर गांव और खानदान में वो इनकलाब नहीं आता। मगर आपने देखा होगा, एक बच्चा मदरसे से फारिग होकर आता है, पूरी बस्ती में इनकलाब ला देता है, पूरे गांव में इनकलाब ला देता है, पूरे इलाके में इनकलाब ला देता है। आपने देखा होगा साहब, कई मामले में कोर्ट ने फैसले सुनाए, बातें बहुत हुई साहब, अच्छी तंजीमें पीछे रह गई मगर रजा एकेडमी ने काम किया, उलमा की तंजीमें आगे बढ़ी। आपने जगह जगह देखा होगा। यही वजह है मैं आपको बताना चाहूंगा, याद रखिएगा, जिंदगी में डॉक्टर उधर भी है, डॉक्टर इधर भी है, इंजीनियर उधर भी है, इंजीनियर इधर भी है, प्रोफेसर उधर भी है, प्रोफेसर इधर भी है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ डिग्रियों वाली तालीम से इंसान समाज का बावकार इंसान नहीं बन सकता। हाँ, अगर उसकी जिंदगी में मैट्रिक की डिग्रियों के साथ मुस्तफा जाने रहमत की सीरत की तालीम आ जाए, डॉक्टर होने के साथ आमेना के लाल का किरदार आ जाए, इंजीनियर प्रोफेसर होने के साथ सहाबा की सीरत उसकी जिंदगी में आ जाए, वो इंसान डॉक्टर भी होगा और गरीबों की मदद करने वाला भी होगा, इंजीनियर भी होगा, समाज का एक समाज के लिए अच्छी फिक्र और अच्छी ज़हनियत रखने वाला भी होगा। फिर उसका नारा ये नहीं होगा माई लाइफ माई चॉइस, जैसे आज नौजवान बातें कर रहे हैं। मौलाना साहब, अजीब बात है, क्या हमारी कोई पर्सनालिटी और जिंदगी नहीं है? माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ। आज कौम की पढ़ी लिखी बेटियां कह रही है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। मैंने कहा बेशक हक है, हर इंसान अपनी मर्जी से जिए, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मर्जी क्या मर्जी है जिस मर्जी से खुदा राजी ना हो? वो मर्जी क्या मर्जी है जिस मर्जी से मुस्तफा राजी ना हो? क्या किसी को कोई नौजवान कहे मौलाना हम अपनी मर्जी से शराब पीना चाहते हैं, क्या आप इजाजत दे देंगे? क्या कोई नौजवान कहना
دینا چاہے میں اپنی مرضی سے جوا کھیلنا چاہتا ہوں, کیا آپ اس کی اجازت دے دیں گے؟ آج بڑا افسوس ہے, مرد عورت بننے کے لیے تیار ہے, عورت مرد بننے کے لیے بے چین ہے. پہلے عورتیں کان میں بالی پہنتی تھی, اب مرد کان میں 4 بالیاں پہن کر گھوم رہے ہیں. پہلے عورتیں چوڑیاں پہنتی تھی, اب مرد چوڑیاں پہن کے گھوم رہے ہیں. پہلے عورتوں کے بال بڑے ہوتے تھے, اب مرد بال بڑھا کر کے گھوم رہے ہیں. سلطان رضا کہنا چاہے گا, اے میری قوم کا نوجوان, یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہو, یاد رکھنا تم نے خواہشات تم نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی ہے, پھر تیرا انجام اچھا نہیں ہوگا. کامیابی تو اس کے لیے ہے, نہا النفس عن الہوا فإن الجنت ہی الماوا. یاد رکھنا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے روک لیا, جنت الفردوس اس کا ٹھکانہ ہے. اے سماج کے حسین و جمیل نوجوان لڑکے اور لڑکیوں, اللہ نے تجھے حسن و جمال دیا ہے, یہ خوبصورت آنکھیں دی ہیں, یہ خوبصورت پرسنالٹی دی ہے. تم اس مالک و مولا کی بارگاہ میں کیوں نہیں لوٹتے؟ اے مولا, تو نے آنکھیں دی ہے, تو نے زندگی دی ہے, تو نے سانسیں دی ہے, تو نے پرسنالٹی دی ہے, تو نے ہمیں صحت و تندرستی عطا کی ہے. اے مولا, تو نے ہمیں عقل سے نوازا ہے. ہم اپنی مرضی سے نہیں, ہم تیری مرضی سے جینا چاہتے ہیں. بتا تیری مرضی کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. زندگی تیری ہو اور سیرت مصطفیٰ جانے رحمت کی ہو, تیری ہو. نعرہ رسالت, مذہب اسلام, تاجدار مدینہ کانفرنس علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ. آنکھیں تیری ہو, حیا رسول اللہ کی ہو, بیٹی تیری ہو, سیرت رسول اللہ کی بیٹی کی ہو, اولادیں تیری ہو اور سیرت حسنین کریمین کی ہے نا. تب جا کر اس زندگی میں انقلاب. جب انسان اپنی مرضی سے جیتا ہے, جواری بن جاتا ہے, شرابی بن جاتا ہے, زانی بن جاتا ہے, پاپی بن جاتا ہے. انسان جب اپنی مرضی سے جیتا ہے, صاحب اس کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں. انسان نفسانی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے. لیکن جب وہ انسان نبی کی مرضی سے جیتا ہے, مسجد کا نمازی وہ ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا وہ ہوتا ہے, انجینئر ڈاکٹر پروفیسر ہو کر بھی نبی کی محبت اس کے سینے میں ہوتی ہے. کماتا ہے تو کماتا وہ ہے, مگر جب مال زکات نکالتا ہے تو اس کی کمائی سے کروڑوں غریبوں کے گھروں میں چراغ جل جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے, یاد رکھیے گا, جب انسان خدا کی مرضی سے جیتا ہے, سرکار کی سیرت کے مطابق جیتا ہے, تو ماں بھی خوشحال ہوتی ہے, بیوی بھی خوشحال ہوتی ہے, بچے بھی خوشحال ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی خوشحال ہوتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے انسان نبی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے. نبی نے کہا, یاد رکھیے گا, ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اتنی تعلیم کی ضرورت ہے, وہ جانے اللہ ایک ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں, بریلی شریف جانے والوں, جب بریلی شریف جاؤ نا تو وہاں سے سرما لے کر کے نہ آؤ, وہاں سے تم صدری اور سیروانی لے کر نہ آؤ, وہاں سے تم امامہ اور ٹوپیاں لے کر نہ آؤ. ارے بریلی شریف سے آؤ تو بریلی کے احمد رضا کا عقیدہ لے کر کے آؤ, بریلی کے احمد رضا کا عشق لے کر کے آؤ, بریلی کے احمد رضا کے علوم کا کچھ حصہ لے کر کے آؤ. آج ہماری قوم کہاں پہ ٹھہر گئی؟ آج ہمارے نوجوان میٹرک پاس کر کے رک جاتے ہیں, انٹر پاس کر کے رک جاتے ہیں, بی اے پاس کر کے رک جاتے ہیں. تعلیم کے معاملے میں آپ کوشش نہیں کرتے. ہمارے مدارس کا بھی حال یہی ہے, بچے اولا ثانیہ ثالثہ پاس کر کے رک جاتے ہیں, بچے حفظ کر کے صرف بیک ہو جاتے ہیں یا قرأت کر کے بیک ہو جاتے ہیں. ہم تعلیم کے معاملے میں کوشش نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگ غوث اعظم کا لنگر کھانے والے ہیں. کتنے لوگ غوث اعظم کا لنگر کھانے والے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے. تو کیا کہنے, سارے لوگ اسٹیج سے لے کر نیچے تک ماشاءاللہ سب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عشق دیا. یاد رکھیے گا, عقیدہ اور ہے اور عشق اور ہے. آج کل لوگ ہر بات کو عقیدہ بول دیتے ہیں, اس لیے اس بات کا خیال رہے. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عشق دیا, قادری کر, قادری رکھ, قادریوں میں اٹھا, قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. مگر
मगर हमारी कौम के नौजवानों ने सिर्फ खत्म कादरिया को जाना है, हमारी कौम के नौजवानों ने सिर्फ गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा कर दिया ये जाना है, हमारी कौम के नौजवानों ने गौसे आजम ने मुर्गे को जिंदा कर दिया सिर्फ ये जाना है। मगर हमारी कौम के नौजवान ये भूल गए कि गौसे आजम वक्त के सबसे बड़े आलिम कैसे बने, सबसे बड़े मुफ्ती कैसे बने, उन्होंने तालीम की राह में कितनी मुशक्कतें उठाई, उन्होंने इल्म हासिल करने के लिए कितना परिश्रम किया। आज थोड़ी सी गरीबी आ गई, हमारे बच्चे तालीम छोड़ देते हैं। आपने गौसे आजम की सीरत का मुताला नहीं किया तो आज आपको मुताला करने की जरूरत है। आज अगर समाज में किसी से पूछा जाए मौलाना साहब इसका नाम क्या है, हर बच्चा कहेगा मौलाना इसका नाम मोबाइल है। अगर मैं पूछूं रखना कैसा है, जो लोग इससे दुखी होंगे वो कहेंगे ये बिल्कुल रखना ठीक नहीं है, जो लोग इससे सुखी होंगे कहेंगे मौलाना इससे तो दाल रोटी चल रही है, इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। याद रखिएगा बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात कुल्लु लिइम्रिइन मा नवा, आमाल के दारो मदार नियत पर है। एक नौजवान मुंबई का उठा है और वो मोबाइल सेंटर पर गया है, कहा मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ, कमाने के लिए जा रहा हूँ, एक मोबाइल अच्छा सा ले लेता हूँ, जब विदेश चला जाऊंगा माँ से गुफ्तगू इससे करूंगा, बीवी बच्चों की खबरों खैरियत इससे पूछूंगा, मैं इस मोबाइल पे जरिया कहां कहां कुरान शरीफ लेकर जाऊंगा, इसी में कंजुल ईमान भी डाउनलोड करके पढ़ूंगा, इसी में जरा से अपने कुर्राए एजाम की क़िरत भी सुन लूंगा, इसी में जरा सरकार की नात भी सुन लूंगा। अब साहब चूंकि नीयत दुरुस्त है, उसकी नीयत ये है कि मैं माँ से गुफ्तगू करूंगा, बीवी बच्चे रिश्तेदारों की खबरों खैरियत लूंगा, मैं इसमें कुरान की तिलावत सुनूंगा भी और करूंगा भी, उसकी नीयत ये है। अब साहब उसका मोबाइल खरीदना सवाब, मोबाइल रखना सवाब, मोबाइल पे माँ से गुफ्तगू करना सवाब, मोबाइल पे बीवी बच्चों की खबरों खैरियत लेना सवाब। मगर एक नौजवान का जहन बदल गया, जहन में आवारगी आ गई, वो मोबाइल सेंटर इसलिए पहुंचा मोबाइल खरीदूंगा, नाच गाने देखूंगा, फिल्म मूवीज देखूंगा, IPL में सट्टा लगाऊंगा, ड्रीम 11 में टीम बना करके मैं उसमें जुआ खेलूंगा। जाहिर सी बात है इसके जरिया मैं साहब गलत लड़कियों से चैटिंग और बातें करूंगा, तो नीयत में फसाद है। अब उसका मोबाइल खरीदना भी गुनाह, उसका मोबाइल रखना भी गुनाह, चूंकि उसकी नीयत में गड़बड़ी आ गई। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू अपनी जिंदगी की नीयत को पाकीज़ा बना ले, खुदा तेरी जिंदगी को पाकीज़ा बना देगा, पाकीज़ा बना देगा। शर्त ये है हमारी नीयत में पाकीज़गी आ जाए, इंसान को नीयत का सवाब मिलता है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की 18 साल की उम्र है, इल्मे दीने मुस्तफ़ा हासिल करने के लिए माँ से इजाजत लेते हैं। कितने साल की उम्र है? 18 साल। जरा पूरा मजमा पीछे से बोल दीजिए, कितने साल की उम्र है? 18 साल। हमारे यहाँ उमूमन 18 साल के बाद बच्चे अब सोचते हैं कि पढ़ाई से रिटायरमेंट होने का वक्त आ गया है, अब पढ़ाई छोड़ने का वक्त आ गया है। अरे मौलाना साहब अब कमाने का वक्त आ गया है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में जीलान से रुखसत हुए और बगदाद इल्म हासिल करने के लिए चल पड़े। माँ ने जो पैसे दिए थे रास्ते में खत्म हो गए। वो माँ भी क्या माँ थी जिस माँ ने कहा था अब्दुल कादिर जा, जहां जाना है जा, ये माँ जो दे रही है ले ले, बेटा जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। आज माँ को बच्चों से गुफ्तगू के लिए कहाँ फुर्सत है, या बच्चों को माँ बाप के साथ बैठकर गुफ्तगू करने या माँ बाप की खबर खैरियत लेने की कहाँ फुर्सत है। सरकार बड़े पीर दस्तगीर चले हैं। माँ के इस बात पे अमल का असर ये हुआ कि कितने लोग रास्ते में साहब तायब हुए और सरकार गौसे आज़म के हाथों पे दाखिले इस्लाम हो गए। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं जो ही मैं बगदाद पहुंचा महीनों दिन पढ़ता रहा मगर मुझे खाना नसीब ना हुआ। मैं उस्ताद से सबक लेता और मस्जिद को चला जाता, जाकर वहां सबक याद करता। भूख की शिद्दत जब बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और पढ़ता फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। ऐ मेरी कौम का नौजवानों सुनो, 18 साल की उम्र है बड़े पीर दस्तगीर की, महीनों खाना नसीब नहीं हुआ
मगर तालीम हासिल करने के लिए भूखे हैं, मगर हर रोज उस्ताद की बारगाह में हाजिर है। प्यासे हैं मगर हर रोज तालीम हासिल कर रहे हैं। भूख की शिद्दत बढ़े तो जमीन पे लेट गए, खुदा की बारगाह में साहब अर्ज गुजार है। मालिको मौला मेरी परेशानी को आसानी में बदल दे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर फरमाते हैं, एक रोज मैं फिक्र की सबक को अपने उस्ताद से पढ़कर बयाबान में आकर बैठकर याद कर रहा था। फिक्र के सबक को याद कर रहा था, गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और उठ करके तुम कुव्वते लायमूत के लिए कर्ज ले लो। कुव्वते लायमूत यानी इतनी ताकत तेरे जिस्म में आ जाए कि मौत वाक़े ना हो, इस कदर कर्ज ले लो। सरकार बड़े पीर दस्तगीर अर्ज गुजार होते हैं, मालिको मौला अब्दुल कादिर के पास तो पहनने के लिए एक अच्छा जुब्बा भी नहीं है, फिर अब्दुल कादिर कर्ज लेगा तो अदा कहां से करेगा। रब्बे कदीर का इशारा होता है, अब्दुल कादिर कर्ज लेना तेरा काम है, अदा कर देना मेरा काम है, तू कर्ज तो ले ले। सरकार बड़े पीर दस्तगीर चले हैं, नानबाई की दुकान पर गए हैं। नानबाई भी खुदा वाला था, सलाम किया, कहा तुम मुझे कर्ज दोगे। उसके आंखों में आंसू आ गए, कहा सरकार मैं भी आपका खादिम और ये दुकान भी आपकी और आप कर्ज की बात कर रहे हैं। कहा ना मैं कर्ज लूंगा मगर एक शर्त पर। कहा हुजूर सारी शर्तें मंजूर है। कहा सुनो, रोजाना तुम मुझे 1.5 रोटियां कर्ज दे देना और याद रखना अगर अल्लाह ने जिंदगी वफा की और कुछ अता कर दिया तो मैं कर्ज वापस कर दूंगा, अगर मौत वाक़े हो गई तो तुम मुझे माफ कर देना। रोजाना 1.5 रोटियां कर्ज देना, आधी रोटी सुबह, आधी रोटी दोपहर और आधी रोटी रात में। आप मैं अपनी कौम के नौजवानों से पूछना चाहता हूँ, आप बताओ ईमानदारी के साथ, ये बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी है जो पढ़ने के लिए 1.5 रोटियां कर्ज ले रहे हैं और हर रोज सुबह को, दोपहर और रात में आधी आधी रोटियां खाते और इल्म हासिल कर रहे हैं। आज कितने गौसे आजम के दीवाने हैं जो भूखे रह करके पढ़ना सीखते हैं, जिन्होंने गुरबती होते हुए भी जिन्होंने तालीम की राह को न छोड़ा हो। आज मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, बताएं आप चाहे कॉलेज में पढ़ते हो, आप चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप चाहे मदारिस में पढ़ते हो, आज हमारी कौम थोड़ी सी गरीबी आ गई या माँ बाप की कमाई में थोड़ी सी कमी आ गई, बेटा इंटर में ताप है मगर तालीम छोड़कर भाग आता है, बेटा कोटा पढ़ रहा है या अच्छे कॉलेज में तैयारियां कर रहा है, माँ बाप की जिंदगी में थोड़ी सी गरीबी आ गई, हम तालीम छोड़ करके बैक हो जाते हैं। या मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे साहब हम पता करते हैं सुबह को क्या मिलता है, दोपहर में क्या मिलता है, रात में क्या मिलता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, अगर हमने अपनी जिंदगी के यही मसाइल रखे तो आज हमारी जो पोजीशन है, मदारिस में सिर्फ 1% बच्चे पढ़ते हैं, उसे 1% को 100% में तब्दील कीजिए तो 1% बच्चे कामयाब होते हैं, 99% बच्चे बैक डोर से वापिस चले जाते हैं। जो बच्चे 99% कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं, 75 से 80% हमारी कौम के बच्चे इंटर तक पढ़ते पढ़ते बैक हो जाते हैं, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता। मैं कहूंगा ऐ मेरी कौम के नौजवानों जागो, आज तुम्हें भी तहरीक में शामिल होने की जरूरत है। वो तुम्हारी तहरीक हो तालीमी बेदारी तहकीक, हम गौसे आजम के मिशन को जिंदा करें। सिर्फ उर्स का मकसद चादरें चढ़ाना नहीं है, सिर्फ उर्स का मकसद मेले लगाना नहीं है, उर्स का मकसद लंगर खाना नहीं है, उर्स का असल मकसद बुजुर्गों की सुन्नत को फिर से समाज में जिंदा करना है। इसलिए आज कौम का हर बच्चा ये वादा करके जाएगा, हम भूखे रहेंगे मगर इंशाअल्लाह हम अपनी तालीम की इंतहा को पहुंचेंगे। हम बीए है तो बीएड करेंगे, हमने इंटर बीए किया है तो हम यूपीएससी बीपीएससी में बैठने की तैयारी करेंगे। हम मोबाइल चला करके सुबह तक के 10 बजे तक सोने वाला नहीं बनेंगे। हम मुंबई के सड़कों पे दौड़कर, बताओ हमारी कौम के नौजवानों, आपकी बिहार पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, आपके मुंबई पुलिस में कितनी हिस्सेदारी है, कितने
बच्चे आपके यूपीएससी और बीपीएससी एसी पास करके साहब बने हैं, आप मदारिस की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मदारिस में ये नहीं होता वो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मदारिस में सारी बातें हो रही हैं। मैं तो कहूंगा इन अगर आपसे नहीं होता तो इन मदारिस को ही इतना मजबूत कीजिए कि साहब ये मदारिस ही काम करे। आप बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी देखिए, या बना आप चाहे अलीगढ़ की मुस्लिम यूनिवर्सिटी या भारत की जामिया, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे बहुत सारे मदरसे के फारिगीन बच्चे पढ़ते हुए भी मिलेंगे और हर बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हुए भी मिलेंगे। आप साहब देखें अब मामलात वो नहीं रह गए। ऐ मेरी कौम का नौजवान, याद रखना आज तुम जिससे टकराने, आज तुम्हारा जिससे मामला है, अब वो दौर बम चलाने का नहीं रहा, वो दौर नहीं रहा कि तुम बंदूक चलाओगे, वो दौर नहीं रहा कि तुम पत्थर चलाओगे, वो दौर नहीं रहा। कौन कहता है कि पत्थर चलाने वालों को मुसलमान कहा जाता है? अरे पत्थर खाकर ताइफ की मैदान में कुफारो मुशरिकीन को के लिए हिदायत की दुआ करने वाले मुस्तफा जाने रहमत को बानिए इस्लाम कहा जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। नबी ने ये किरदार दिया है। आज ये सोशल मीडिया का जमाना है साहब, इसलिए मैं आपसे कहूंगा ऐ मेरी कौम के नौजवानों, मैं रोना अपना रोता हूं तो हंस हंस के सुनते हैं। हमारे दिल की लगी उन्हें दिल लगी मालूम होती है। आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इतना एजुकेशन होना चाहिए, हर कौम के बच्चे के अंदर ये जुनून होना चाहिए। हमें पढ़ लिख करके कुछ बनना है, आपकी कुछ मंजिल होनी चाहिए, वो चाहे तिजारत के एतबार से हो, वो चाहे नौकरी के एतबार से हो, वो चाहे एजुकेशन के एतबार से हो, आपको पहुंचना कहाँ है। और मैं अपने कौम के अमीरों से भी कहूंगा, सरमायादारों से भी कहूंगा, जब ये कौम ही जिंदा नहीं रहेगी तो आपकी बिल्डिंगों की हिफाजत कौन करेगा, आपकी दौलत की हिफाजत कौन करेगा, आपकी तिजारत की हिफाजत कौन करेगा। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा अपने अंदर इतनी क्वालिटी पैदा करो कि वर्दी भी तुम्हारे पास दी जाए और तुम्हारे हाथों में हथियार भी दिया जाए कि आप